سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں تمام شہر اور اطراف سے آئے ہوئے مہمانان مکرم کو اپنی طرف سے عید الفطر کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا، یقیناً یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی بنیادوں میں ایک بنیاد رمضان المبارک، یعنی کہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ فرض ہے، یہ اسلام کی بنیادوں میں ایک بنیاد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ہمارے لیے نماز اللہ کا حکم ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہمارے اوپر روزہ بھی ہے۔ اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ لوگ بڑے قابل عزت و احترام ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے مسجد جا رہے ہیں، اور دیکھا کہ راستے میں بچے بڑے خوشیاں منا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک بچہ الگ کونے میں کھڑا ہوا ہے اور مایوسی کے عالم میں ہے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ معصوم بچہ چپ چاپ الگ کونے میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار ہیں، اس سے معلوم کیا جائے اللہ کے لاڈلے حبیب آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے کہا کہ اے بچے، یہ سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ بچے بڑے کھیل کود میں مصروف ہیں اور تو ایک طرف کھڑا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیوں مایوس ہے؟ بچے نے رو کر فرمایا، اے میرے محبوب آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوشیاں کس لیے مناؤں؟ میرے ماں باپ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے لاڈلے حبیب آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی انگلی پکڑی اور اس کو گھر لے گئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم بچے کو، اس یتیم بچے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے جاتے ہیں اور فرمایا، عائشہ اس بچے کو نہلاؤ اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے سر میں تیل لگاؤ اور اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کے سر میں کنگھی کرو، اور فرمایا کہ یہ حسن کے ہم عمر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے،
खातून जन्नत है, जन्नत की सरदार है। वहाँ पता भेजा कि हसन का कोई लिबास रखा हुआ होगा, और उसको मंगाया, उस बच्चे को नहलाया धुलाया, और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उसके सर में तेल लगा रही है नहलाने के बाद, और उसके सर में कंघी कर रही है, और उसके बाद उसको लिबास पहनाया गया, साफ सुथरा लिबास पहना गया। उसके बाद उस बच्चे से आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए बच्चे, जब तेरे वालिद इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, जब तुम्हारे वालिद साहब, तुम्हारे अब्बू इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, तो तुम किस हालत में आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए बच्चे, जब तुम्हारे वालिद साहब, तुम्हारे अब्बू इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, तो तुमको ईदगाह किस तरह ले जाया करते थे? उस बच्चे ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे अब्बू इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, तो मेरे वालिद साहब मुझको कंधों पर बिठाकर ईदगाह ले जाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैठ गए और उस बच्चे को, उस यतीम बच्चे को अपने कांधों पर बिठाया, और कांधे पर बिठाकर ईदगाह के लिए लेकर चले। जब वो बच्चे खुद बना रहे थे, जो बच्चे उसके साथ उससे पहले खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि ये बच्चा अभी यहाँ खड़ा था, लिबास भी मेला कुचेला था, और अब ये लिबास भी अच्छा पहन रहा है, इसके सर में तेल भी लगा हुआ है, और ये नहा कर भी आया है। और फरमाया कि ए बच्चे, तू आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर बैठकर आया, और फरमाया आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आज से मैं तेरा बाप हूँ और आयशा तेरी अम्मी है। जब उन बच्चों को पता चला, सारे के सारे किलकियां मारने लगे, रोने लगे। उनके भी दिल में तड़प हुई कि काश हमारे वालिद दुनिया के अंदर मौजूद न होते, हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होकर ईदगाह जाते। वो बच्चे सारे रोने लगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, जब ईदगाह में पहुंचे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को नीचे नहीं बिठाया, अपने बराबर में बिठाया, और उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया कि ए लोगों, जो यतीमों की कफालत करेगा, जो यतीम के सर पर हाथ रखेगा, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे, इतनी नेकियां उसके नामाए आमाल में लिख दी जाएंगी। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत खुशी का दिन अता फरमाया। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला खिताब कर रहे हैं किस ईमान वालों से। अपने कुरान के अंदर, अपने कलाम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये ईमान वालों, पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा चलना फिरना इस्लामी हो, तुम्हारा लिबास इस्लामी हो, तुम्हारा चेहरा इस्लामी हो, और तुम्हारा लेन देन हर चीज इस्लामी हो। पूरा मुकम्मल इस्लाम अपनाओ। तुम्हारी वजह से तुम्हारे किसी पड़ोसी को तकलीफ न हो, किसी आने जाने वाले को कोई तकलीफ न हो। तो अब जैसे हम ईदगाह से फारिग होकर ईद की नमाज के बाद अपने घरों को जाएंगे, ऐसे जाएं, ऐसे हालत में जाएं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल हमारी तरफ से किसी को परेशानी ना उठानी पड़े। अगर हमारी वजह से किसी को परेशानी उठानी पड़ी तो फिर यकीनन हमारे ईमान में कमजोरी है। और मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर नमाज का हुक्म नाफिज कर रखा है। ईमान के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर क्या चीज फर्ज की है? नमाज। और मेरे अजीज दोस्तों, बहुत से आदमी ऐसे हैं
जो साल में एक ही बार नमाज अदा करते हैं, ईद को या बकरीद को, और बहुत से ऐसे हैं जो 8वें दिन नमाज अदा करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, नमाज तो मुकम्मल तरीके से अपनाओ। ये तो 5 वक्ता रोजाना अल्लाह का हुक्म है। इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे अमल। हाँ, 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करें। 5 वक्त अल्लाह का हुक्म है। तो मेरे अजीज दोस्तों, हम अल्लाह के हुक्म को मानने वाले बने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाले बने, जभी कामयाबी है। और आज हम परेशान हैं, पूरी दुनिया में ठुकराए जा रहे हैं, दुनिया में हमारा पुरसा नहीं, इसलिए कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल आक़ा मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को तोड़ रखा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाले बने, अल्लाह के महबूब की एक एक सुन्नतों पर अमल करने वाले बने। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज वाजिब ईद फित्र पीछे मान के अल्लाहु अकबर नियत बांधेंगे। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर का नियत बांधेंगे तो सना पढ़ेंगे। सना के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। फिर सूरह फातिहा किरात पूरी तरतीब के साथ रकात होगी। फिर दूसरी रकात जब होगी तो उसमें किरात होगी, उस सूरह फातिहा किरात। फिर उसके बाद रुकू में से तकबीर होंगी, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहकर फिर हाथ छोड़ देंगे और चौथी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। फिर इसी तरह पूरी तरतीब के साथ नमाज पूरी हो जाएगी। और खुसूसन जब सलाम फिर जाए, दुआ हो जाए, फिर खुतबा होगा। खुतबा सुने बगैर कोई ना जाए, खुतबा सुनना सुन्नत है। तो सभी खुतबे के बाद जाए, खुतबा होने से पहले कोई भी यहाँ से जाने का एहतमाम न करे। एक बार और सुन ले, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र माज़ाई 6 तकबीरों के पीछे पेश इमाम के अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। जब इमाम साहब नियत बांध लेंगे और सना पढ़ेंगे, सना के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे और सूरह फातिहा किरात पूरी तरतीब के साथ पूरी रकात होगी। फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा किरात रुकू में जाने से पहले तकबीर होंगी, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ेंगे। तीसरी बार फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे और चौथी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। फिर उसके बाद पूरी तरतीब के साथ नमाज पूरी मुकम्मल हो जाएगी। और जब नमाज पूरी हो जाए तो खुतबा सुनकर जाए, सभी बगैर खुतबे के कोई ना जाए। अभी डॉक्टर साहब इशारा कर रहे हैं, बस खड़े कर लो, सब दुरुस्त कर लो। और जो हजरात बाहर हैं बहुत जल्द सफ़े दुरुस्त कर ले, 9 बजे तक आती रहेंगे, सफ़े दुरुस्त कर ले जो हजरात बाहर हैं। इसको अच्छा और दूर करो।
جو حضرات باہر ہے وہ بہت جلد صفحے درست کر لیں. نماز